बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुज्जाज इकराम हज से वापस आए हुए हैं और आ रहे हैं, और उनकी क़दर, उनका एहतराम करना हम सब के ऊपर ज़रूरी है। और मैंने ये बात शुरू में अर्ज़ की थी कि हुज्जाज ये अल्लाह के मेहमान, तो अल्लाह के मेहमानों की इज़्ज़त एहतराम करना हम सब के ऊपर ज़रूरी। और फिर दूसरी वजह मैंने ये अर्ज़ की थी कि इतना लंबा सफ़र करके और वहाँ फिर वक़्त गुज़ार के मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, मुहतरम मकामात के अंदर, और उन्होंने इन 3-4 हफ़्तों के अंदर बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, तो उन तकलीफ़ों की भी कदर हम करते हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ें दीन के लिए उन्होंने बर्दाश्त की हैं। तो ये दूसरी वजह। और ऑफ़ कोर्स वो अपनी इबादत अदा कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी दर्जे तक उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और वहाँ वो रहे, वापस आएँ। तो अब उनके एहतराम का क्या अंदाज़ होना चाहिए? हाउ कुड वी show appreciation for those people who've performed Hajj? Because the first reason I gave was they were the guests of Allah, Dhuyufur Rahman. And the second thing is that while they were there, they went through hard times, hardships, tough times. Sometimes, of course, like I said, I know there are a lot of luxuries over there compared to what they were 20 years ago or 30 years ago, and I was quite in detail explaining some of those luxuries, but Allah subhanahu wa ta'ala has made it that those luxuries are for this age. We are a different people physically, mentally, of what we were, let's say, 50 years ago. 50 years ago, the tolerance, in general I'm talking about, 50 years ago, our level of tolerance and bearance, our level of strength and adaptation was much stronger. And that's why one of my teachers was saying many years ago that Allah, through His infinite wisdom, has made it that as people become weaker due to the advances in technology, in the worldly physical materials, Allah subhanahu wa ta'ala makes more improvements for them so that they can adjust to time. But anyway, so it's important that those people who've come back from Hajj, we show appreciation. And one of those ways of appreciation is we go and meet them. उनके साथ जाकर मुलाकात करें। जो हुज्जाज इकराम आए हैं, तो वक़्त निकाल कर उनके पास जाएं, उनसे मुलाकातें करें, और दूसरी बात, उनसे दुआओं की दरख्वास्त करें। The second thing is that although we are meeting them, we are asking them to keep us and remember us in their special du'as, because when a Haji comes back, until many days, Allah subhanahu wa ta'ala accepts their prayers, accepts their du'as. उनकी दुआएं वो कबूल होती हैं। तो अगरचे वो आपके लिए ख़ास वक़्त के अंदर दुआएं न करें और याद न रहे, क्योंकि इंसान को हर वक़्त याद तो नहीं रहता, लेकिन उस वक़्त भी जब आप उनसे मिलेंगे, when you meet them at that time and you say, I want you to make dua for me because your duas are accepted, and they say, Allah आपकी दुआएं कबूल करे, may Allah accept your duas, या वो कहें अल्लाह आपको ईमान नसीब करे, may Allah give you ईमान कामिल, perfect, before you leave this world and at the time you leave this world, तो ये भी एक बड़ी दुआ है। They don't necessarily have to remember you afterwards, but even at that time, उस वक़्त भी जब आप दुआएं करेंगे, उनसे दुआओं की दरख्वास्त करेंगे, और वो आपको अपनी दुआओं में याद करते हैं या दुआएं करते हैं,
क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त की उनकी दुआ कबूल करके आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। दो बातें हो गई, तो एक तो उनकी मुलाकात, दूसरी उनसे दुआओं की दरख्वास्त, और तीसरी बात वो आम तौर पर ज़मज़म का पानी ले आते हैं। मोस्ट पीपल दे ब्रिंग ज़मज़म and they will offer zamzam to you and the dates of course. The most important thing is zamzam. सबसे अहम चीज़ उस वक़्त वो zamzam है, because zamzam originally can only be sourced from one source, and that is the well near Kaabatullah. zamzam की असल सिर्फ और सिर्फ दुनिया की एक ही जगह से हो सकती है, और वो है काबतुल्लाह के पास जो वहाँ कुआं, जमज़म का कुआं। ऑफ कोर्स वहाँ से फिर पूरी दुनिया के अंदर तकसीम हो जाती है, ट्रकों के ट्रक। हमें पता है कि मदीना चले जाते हैं, दूसरे इलाकों के अंदर जाते हैं लोग भर कर, लेकिन असल एक ही जगह है। खजूरी भी अहम है क्योंकि उनके साथ मक्का का ताल्लुक़, मक्का की मदीना की निस्बत हो जाती है। देयर इज़ एन एसोसिएशन विद द डेट्स दैट दीज आर फ्रॉम मक्का, दीज आर फ्रॉम मदीना, एंड एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन सबसे अहम चीज़ उस वक़्त वो ज़मज़म का पानी। और हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही हदीस है, फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लह, जिस नीयत से ज़मज़म का पानी पिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नीयत, वो दुआ आपकी कबूल फरमाते हैं। तो तीसरी चीज़, आप जब जाएंगे इस नीयत से कि ज़मज़म का पानी पिएंगे और अपने लिए, उम्मत के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए दुआएं करेंगे ज़मज़म पीने से पहले। और इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल प्रोग्राम करेंगे पूरे ज़मज़म और उसकी असलियत और उसके फ़वाइद, जिस्मानी फ़वाइद, रूहानी फ़वाइद, दुआओं की फ़वाइद वगैरह। तो तीसरी चीज़ इसके लिए। और चौथी चीज़, द फोर्थ थिंग इज़, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं, व्हेन यू गो टू विजिट द हुज्जाज, which happens in the older generation, but here's something that obsess a lot of us elders, and that is we see this dwindling away and melting away, eroding away from the younger generation. ये जो मुलाकातें होती हैं कि जो हुज्जाज आते हैं या कोई ख़ास अहम मौका होता है तो हम दूसरों के साथ जाकर उनकी यहाँ मुलाकात के लिए जाते हैं, ये हमारी जनरेशन तक तो हैं, लेकिन जो अगली बाद में जनरेशन, अगली नस्ल जो आ रही है, दैट मीन्स दोस youngsters who are maybe less than 20 years old, 25 years old, 20-25 साल से जो कम है, मैंने देखा कि उनसे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अब ख़त्म हो रही है। कितनी मरतबा मैंने देखा कि हुज्जाज करम के पास हम जाते हैं, we go and visit those people who've returned from Hajj, and you'll see the elders are there, you'll see the middle generation, but the younger generation, only a few. And this is something that we need to instill in them, the social skills of life. मुआशरत के जो अहम स्किल्स हैं वो यंगस्टरों से ख़त्म हो रही हैं। आप देखेंगे कि आप जो जा रहे हैं मुलाकात के लिए, चाहे मर्द हों आपके घर के या औरतें हों, men and women of your household, you will notice that you will go and visit your relatives, your friends, your colleagues, your neighbors, people in your vicinity, people in your area. But how many times have you asked the youngsters in your house that I want you to accompany us so that we can go and visit these people on Hajj? कितनी मरतबा आपने पूछा अपने यंगस्टरों को, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों या आपके भांजे भतीजे हों या आपके पोते दोते नवासे नवासियाँ, whether they were your own children, your siblings, your nephews and nieces, or whether they were your grandchildren, you have gone to visit somebody
as a mark of respect for their Hajj or their Umrah, have you asked your youngsters to go along with you? Because these are some of the life skills that you are depriving them of. You need to nurture them. उनकी तरबियत, ये तरबियत उनकी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जाते रहे और उनको इसकी आदत नहीं डाली, तो चंद सालों के बाद, आज अगर वो 16-17 साल के हैं, आज अगर वो 20 साल के हैं, तो 20 साल के 5 साल के बाद वो 25 साल के, 10 साल के बाद वो 30 साल के हो गए, वो घर के ज़िम्मेदार हो गए, लेकिन चूंकि उनको आदत नहीं पड़ी थी, because you haven't given them habit of going to visit and keeping up this social contact with the people, they will feel it difficult to go there and they have lost out on the society. तो इसलिए that's why मैं ज़रूर इस बात की दरख्वास्त करूँगा, I will really ask कि जब आप जाएं, when you go and you go to visit people, you take your youngsters with you. आप अपने साथ जो अपने बच्चे हैं या अपने घराने के हैं, उनको भी साथ, ऑफ कोर्स वो आम तौर पर कहते हैं कि हम उधर जाकर बोर हो जाते हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी उनके साथ जान पहचान, we feel awkward, they will tell you, just go in there, we've never been there, leave us out this time. Sometimes you have to do what is right, not what they think is right, because you have much more experience, much more knowledge in this, and of course with wisdom, explaining to them, helping them to understand the reasons and the benefits behind this. बाज़ औक़ात वो कहेंगे हमारा उनके साथ ताल्लुक़ नहीं, उधर जाकर हमें क्या कहना है, हमें छोड़ दो, and because they haven't been many times, they find it difficult. उनको बाज़ औक़ात मुश्किल लगता है, क्योंकि वो इधर जाना आना उनको होता नहीं है। तो उनको समझाओ हिकमत के साथ, प्यार के साथ, उसके जो फ़वाइद हैं वो उनको समझाओ, उनको बतलाओ, ताकि उनको पता चले, क्योंकि एक दो दफ़ा इस तरह अगर वो गए तो उनके लिए फिर वहाँ जाना बड़ा आसान हो जाता है. They will find it easy to go over there because they understand the benefits. इसलिए I really think okay, this is the fourth thing, and that is find it a time that you want to nurture your youngsters in this life skill. आप अपनी औलाद की या अपने घर वालों की या बच्चों की ये तरबियत का एक मौका समझो कि मैं उनको अपने साथ इसलिए ले जा रही हूँ ताकि उनकी तरबियत हो. कल अगर हम किसी वजह से जा नहीं सके, बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, या अगर हम न हो तो कम से कम इनका आना जाना, लोगों के साथ ये ताल्लुक़ बाकी रह जाए. And one of the reasons I stress on this point of social interaction with people and with society is because with the increasing technology and with the increasing social media, we have all witnessed that people have become more isolated, more selfish, and people have become more lonely. So you may have 200 contacts on your social media, but the face-to-face interaction and being able to feel comfortable with talking to people, I have noticed a huge deficit in that. क्योंकि लोगों के अंदर वो जो लोगों के साथ मुलाकात और उठना बैठना, उनकी तबीयत का समझना, चूँकि सोशल मीडिया इतना हो गया है और इंटरनेट की वजह से और स्मार्टफोन्स की वजह से और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसकी वजह से बाज़ औक़ात यंगस्टर अकेलेपन को